Hello ninth class students, welcome to CBSE tutorials. Today we will do chapter number 7 of your NCERT science book, that is motion. I'll give you full explanation topic wise line to line of NCERT book. Your first topic is what is the difference between state of rest and state of motion. Now, state of rest simply means a body is said to be in the state of rest when its position does not change with respect to its reference point. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका घर से स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर है, तो आप अगर किसी को बताना चाहते हो जिसे आपका घर पता है लेकिन स्कूल नहीं पता, तो आप स्कूल का एड्रेस कैसे दोगे? इट इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस. नाउ हाउस इज़ व्हाट? रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी चीज़ की पोजीशन फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती है, तो हम उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? It is said to be in a state of rest. Similarly, the state of motion, when a body is said to be in a state of motion when its position changes continuously with reference to a point. अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी चीज़ का जो रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मूविंग बाइसिकल, मूविंग कार, मूविंग बस, रेफरेंस पॉइंट से उसकी जो पोजीशन है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, सो दैट बॉडी इज in state of motion. Next, motion is defined as what? Movement. Okay. Now second your important term is motion is of different types. Now different types comes here: circulatory motion, circular motion, linear motion or motion in straight line, and oscillatory motion, vibrating motion to and fro. Now here students, motion is of three types in this chapter. You will study circular motion or linear motion and oscillatory motion. You know, when we move from a point and reaches again the same initial point, that is known as circular motion. Linear motion is the motion when we move in a straight line, and oscillatory motion means to and fro. Pendulum is the best example of oscillatory motion. Now next your topic is very important, what is difference between scalar and vector quantity. Now scalar and vector quantity, look here. Scalar quantity is what? It is the physical quantity having own magnitude but no direction. जब मैं बात कर रही हूँ स्केलर वर्ड की, इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड तो है, यानी डिस्टेंस तो ये प्रॉपरली कवर करता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती इसमें. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस एंड स्पीड, they are scalar physical quantities. Now what is vector? It is the physical quantity that requires both magnitude and direction. For example, displacement, velocity. यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी मैटर करती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके. नाउ वेलोसिटी इज द चेंज इन स्पीड. नाउ हियर direction is also included with magnitude, so this physical quantity is known as vector, right? Now next very important difference between distance and displacement. Now what is distance? Listen carefully. Length of actual path traveled by an object means आपने कितना actual path travel किया है, उसकी proper length को हम किससे रेफर करते हैं? टर्म से डिस्टेंस. लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगी. मान लीजिए ये पॉइंट है ए. ओके. इस पॉइंट से आप ट्रेवल कर रहे हो यहाँ पे बी पॉइंट पे, फिर आप सी पे जा रहे हो, ठीक है, और फिर आप जा रहे हो डी पे, तो ये तो, और वापस आ रहे हो आप ए पॉइंट पे. तो यहाँ पर ए बी सी डी
देन ए, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस, आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लोगे डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को समझिए, जहाँ से आपने मूव किया था आप वापस उसी जगह पे पहुँच गए, यानी आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे आप इसको? डिस्प्लेसमेंट। ओके, so shortest length between initial point and final point of an object is called displacement। और इस केस में जहां आप अगर किसी पॉइंट पर स्टार्ट करते हो और वापस वहीं पहुंच जाते हो, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो ज़ीरो बन जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। नेक्स्ट इज second difference, distance is always a scalar quantity. It covers the path, it has magnitude but no direction, whereas displacement is a vector quantity having both magnitude and direction. Third, it remains positive, can't be zero or negative. Distance हमेशा positive होगा, ये कभी zero और negative नहीं होता, whereas displacement can be positive, negative or zero. Next is uniform motion. Now look here, in uniform motion simply आपने क्या समझना है कि मोशन कब यूनिफॉर्म है और कब इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। बेटा ध्यान से सुनोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जब ऑब्जेक्ट कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, 5 मीटर कवर कर रहा है फर्स्ट सेकेंड में, देन आफ्टर फर्स्ट सेकेंड 5 मीटर मूव इन नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन थर्ड। तो आप देखो 5 मीटर हर सिचुएशन में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। Whereas in non-uniform motion, example is when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, यानी कि जॉगिंग करते हुए और क्राउडेड स्ट्रीट में पास करते हुए अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Next is, what is the difference between speed and velocity? Now speed is what? It is the ratio of distance covered in unit time. And velocity is what? It is displacement of a body in a unit time. आप यहाँ देखो displacement vector quantity है जो velocity के साथ है, और distance scalar quantity है जो speed के साथ है. Speed is scalar quantity whereas velocity is a vector quantity. Now speed does not tell us about direction of the motion, whereas velocity tells us about speed and direction both of the motion of a body. The speed is always positive, whereas velocity, it can be positive and negative depending on the direction of the motion. Now what is the similarity between velocity and speed? Now look here, both have same unit, that is meter per second. Speed and velocity both have same units, meter per second. Now what is the formula of average speed? Total distance travelled by an object upon total time taken. Average velocity is what? Initial velocity plus final velocity divided by 2. That is formula what? Initial velocity denoted by u, final velocity denoted by v. U plus v upon 2 is your average velocity. Now rate of change of velocity, next topic, very important. The change in velocity of an object per unit time is called what? Acceleration. यानी कि अगर velocity में change हो रहा है per unit time, तो उसको हम denote करेंगे acceleration से, जिसका symbol है small a. Now what is the formula of acceleration? Change in velocity upon time taken. Now what is change in velocity? Final velocity minus initial velocity upon t. Now what is the SI unit of acceleration? It is always meter per second square. Remember what is the SI unit of acceleration is meter per second square. Unit of speed and velocity is meter per second, whereas unit of acceleration is meter per second square. Remember this. Now next is uniform acceleration. Now look here.
Very important question. What is uniform acceleration? If an object travels in the straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal intervals of time, that acceleration of the object is called uniform. For example, motion of a free falling body. Whereas what is non-uniform acceleration? An object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speeds by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. फॉर एग्जाम्पल रेसिंग कार है बेटा, रेसिंग कार को हर हालत में जीतना है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. इसलिए हम वहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रेसिंग कार किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. आपके इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, ग्राफ्स आपको आते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो आइए इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दो बातें आपको याद रखनी है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. हम हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं इंडिपेंडेंट टर्म्स, जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट है वो, और वाई एक्सिस में लेते हैं डिपेंडेंट टर्म. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया आपका, वेलोसिटी हो गई, पोजीशन हो गई, जो कि डिपेंड करती है किसी पे. आइए देखते हैं फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो वाई एक्सिस पे जैसे मैंने कहा डिस्टेंस लेंगे, डिपेंडेंट टर्म, और एक्स एक्सिस पे मैंने इंडिपेंडेंट टर्म ली है टाइम. तो जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो आपके पास इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से स्लोप आएगी आपके पास. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें बच्चे हम, तो देखिए नॉन स्पीड में क्या होता है. नॉन स्पीड में आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कर्व की फॉर्म में आएगा. ठीक है. और स्टेशनरी की जब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और आपको बोला है कि ड्रॉ कीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. ओके, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आइए समझते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है. देखिए जो स्ट्रेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर बाई चांस आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और अगर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रही है तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा जो डिसेलरेशन को डिनोट करेगा. ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन कैसे निकाली जाती है. सबसे पहले जो इक्वेशन हम निकालेंगे वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताएगी हमें, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी अपॉन टाइम का. ये स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी. इनिशियल जो वेलोसिटी है आपकी दैट इज डिनोटेड बाय u, जो ए ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू सी डी. और जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी दैट इज ओ ई, यानी कि बी सी. तो ये सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. ओ ए, this one OA is equal to CD, that is initial velocity. OE is equal to BC, that is final velocity, and OC is equal to AD, means T, time. Now BD is equal to BC minus DC. BC minus DC is your BD. Now what is BC? BC is V, and what is CD? It is U. So BD is equal to V minus U, यानी change in velocity. Okay. Now look here. Now AD is parallel to OC. Now BC is equal to BD plus DC is equal to BD plus OA. Now हमें पता है BC किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी के OA
हमारा u है, वी गेट v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, और बी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v माइनस यू. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन. आपको पता है, अभी मैंने बताया कि स्लोप हमें क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रही है. तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका ग्राफ था ना, इसमें ये स्लोप आपको दे रही है एक्सेलरेशन. तो दिस वन इज व्हाट, ये था हमारा बी सी, दिस इज डी, और ये था हमारा ओ ई, और यहाँ पर हमारा क्या था, ए. तो आप ये देखो कि स्लोप जब निकालनी है ए, तो ए किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन ए डी. ठीक है, और ए डी किसके बराबर है, ओ सी के. तो मैंने यहाँ ओ सी लिख दिया, और ओ सी है क्या, टाइम है. तो मैंने यहाँ लिख दिया ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम. तो बी डी अपॉन टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए टी. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए टी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो, सब्सटीट्यूटिंग टू इन फर्स्ट वी गेट बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और बी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए टी. ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि वेलोसिटी का जो रिलेशन है टाइम के साथ वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्लियर. द नेक्स्ट इज योर द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. आपने इक्वेशन मोशन की निकालनी है, किसके बीच में रिलेशन दिखाना है, पोजीशन और टाइम के बीच में. फिर मैं वेलोसिटी यहाँ ले रही हूँ, टाइम इधर ले रही हूँ. तो आप अब देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा s है, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. यहाँ से जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हम उसको इस फॉर्म में देख रहे हैं, ओ ए बी सी. ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा आपके पास. टी हमारा टाइम है और ए हमारी एक्सेलरेशन है. तो आइए देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया इनक्लोज्ड विद ओ ए बी सी इन द ग्राफ. तो ओ ए बी सी में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, यानी ये आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ओ ए डी सी. इस रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करना है आपने इस ट्राइंगल के एरिया से, ए बी डी से. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ओ. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ओ ए इंटू ओ सी. और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी. ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आपको बता दिया है, ओ ए इंटू ओ सी ये रेक्टेंगल का एरिया है. यहाँ पे हमारा आएगा प्लस का साइन, हाफ ए डी इंटू बी डी, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया. दोनों का एरिया हम प्लस वैल्यू पुट करेंगे. ओ ए हमारे पास क्या है, यू, ओ सी इज टाइम, एंड बी डी इज व्हाट, बी डी इज ए टी, जो हमने पहले प्रूव किया. तो इससे हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, एस इज इक्वल टू यू टी. ओ ए की वैल्यू यू है ना, और ओ सी की टी, यू टी आ गया, प्लस का साइन, हाफ ए डी क्या है हमारा टी, और बी डी क्या है ए टी. तो ये टी इंटू ए टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर. ओके, तो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम. थर्ड इक्वेशन है आपके पास फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो यहाँ पे देखिए, हमने ये जो ट्रेपीजियम लिया है ओ ए बी सी, इस ट्रेपीजियम का हम पूरा एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय 2. फिर से सुनेंगे ट्रेपीजियम का ओ ए बी सी का फॉर्मूला, ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी डिवाइडेड बाय 2. वैल्यूज पुट करो, ओ ए की वैल्यू पुट की हमने u, बी सी की वैल्यू पुट की v, और ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, t डिवाइडेड बाय 2. अब हम इस t की वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास. t की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली है, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए. तो इसकी वैल्यू जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास इस तरह का कुछ कैलकुलेशंस आ जाएंगी, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू, ये t की वैल्यू मैंने t अलग कर दी है, v माइनस यू अपॉन ए. s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है मैथ्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया. इसको यहाँ लेकर जाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये आपका रिलेशन आ गया पोजीशन एंड वेलोसिटी का. लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में
दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, इस तरह से, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है, यानी स्पीड चेंज कर करके मूव करती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बेटा इसमें जो फोर्स होता है सेंटर से, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज योर चैप्टर एनसीईआरटी मोशन ऑफ क्लास 9th। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इस वीडियो के बाद बेटा मैं आपको दूंगी इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।